Hello students, welcome to the class. So today we will do the third lecture of inverse trigonometric functions. In the first two lecture, what we did, in the first lecture we studied the graph of the inverse trigonometric functions. Then in the second lecture about the principal values of the inverse trigonometric relations and some of the questions. And today we will do the properties of inverse trigonometric functions. So properties of inverse trigonometric functions. So one property we did, that was x is equal to sine inverse sine of x cos inverse cos of x. So here what we have, x should be between, and that can be for other t ratios also, or it can also be x is equal to sine of sine inverse x is equal to cos of cos inverse x. Here x is less than equal to 1. Okay, or x can be tangent of tangent inverse x and cot of cot inverse x. Okay, and this is cosecant inverse cosecant of cosecant inverse x, secant of secant inverse x. Okay, then we have got these properties, that is, first property is sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. For this, x should be less than equal to 1. And second of same type is cosecant inverse x plus secant inverse x is equal to pi by 2. X should be greater than equal to 1. And third is your cot inverse x plus tangent inverse x, this is equal to pi by 2, and x belongs to real number. Okay, so we will prove this just taking the first one. Proof is, so what we do here, sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So let us assume sin इनवर्स x को हम मान लेते हैं यहाँ पे y, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन y. अब साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस पाई, अलाइड एंगल cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. सो दिस इज sin y इज इक्वल टू cos 90 माइनस y. और यहाँ से हम यह क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई विच इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. Okay, and similarly we can prove the other parts on the same basis. For example, if we have got secant inverse x plus cosecant inverse x is equal to pi by 2. So here we can assume secant inverse x is equal to y, x is equal to secant y, and which is equal to secant pi by 2 minus y. So this is cosecant. So cosecant inverse x will be equal to pi by 2 minus y. So just take y to this side. अगर y को हम इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा cosecant inverse x plus y is equal to pi by 2, और ये y की जगह हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं cosecant inverse x, और y क्या है, secant inverse x. This will be equal to pi by 2. So ये हमारा, इसी तरह से हम थर्ड वाला प्रूव कर सकते हैं, cot inverse x plus tangent inverse x, that will be equal to pi by 2. तो इन तीनों को हमने प्रूव करने के लिए सेम ही स्ट्रेटजी यूज करनी है. सो वी कैन प्रूव इट यूजिंग द सेम थिंग्स. ओके,
देन आगे जो हमने प्रूव करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं, उससे पहले इसको हम रेज करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी है टेंजेंट पे। ओके, सो ये प्रॉपर्टी है हमारे property is tangent inverse x plus tangent inverse y is equal to tangent inverse x plus y 1 minus xy, and 1 minus xy should be less than 0. Okay, so ये less than 0 है, this cannot be greater than equal to 0. ये रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? सपोज इसको हम इधर करते हैं, सपोज if 1 minus xy is equal to 0, so 1 is equal to xy, so we can see that RHS is not defined. So tangent inverse infinity, that is not defined. So 1 upon x plus y upon 1 minus xy. So this is not defined. And for example, 1 minus xy is greater than 0. Then 1 is greater than xy. Okay. So this is, so left hand side is negative. Suppose if y is less than 0, so right hand side is positive. Right hand, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। So इसका क्या मतलब है? तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। सो ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओवरऑल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज x एंड y कैन टेक एनी वैल्यू इफ y इज नेगेटिव। अगर y की वैल्यू एंगल ज्यादा हो गया, ये ओवरऑल हमारा नेगेटिव आ जाएगा। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा। सो दिस रिजल्ट डज नॉट होल्ड for 1 minus xy greater than equal to 0. So इसके लिए इसको 1 minus xy should be less than 0. ये less than 0 ही रहना चाहिए। Okay. Now what will be there? It will be having xy is less than 1. xy is less than 1. Okay. इट मीन्स कि ये 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये लेस देन 0 होगा तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये नेगेटिव है तो सारा वही हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, पॉजिटिव होना चाहिए ये हमारा। ओके, सो लेट अस प्रूव इट। लेट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट a के, y इसके इक्वल हो गया टेंजेंट b के। तो हमारे पास हम लिखते हैं टेंजेंट x प्लस y किसके इक्वल होता है? ये होता है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हम डाल देते हैं टेंजेंट x प्लस वाई विल बी इक्वल टू टेंजेंट x क्या है? टेंजेंट a प्लस b। क्या ये गलत हो गया, इसको ठीक करते हैं बेटा। ये a b है, सो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट a प्लस b करते हैं हम। क्या हो जाएगा? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। सो दिस विल बी योर टेंजेंट ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेंजेंट ए क्या है हमारा? x है, टेंजेंट बी क्या है? y, 1 माइनस एक्स वाई, एंड a प्लस बी विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
और ए बी क्या है, ए बी को हम लिख सकते हैं, ये हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स है, ये टेंजेंट इनवर्स वाई है, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, सो ये आ गया। इसी तरह से हम सेकंड वाला प्रूव कर सकते हैं ऑन द सेम बेसिस यूजिंग द अदर फॉर्मूला। तो उसके लिए हम इधर करते हैं, so this will be your tangent inverse x minus tangent inverse y is equal to tangent inverse x minus y 1 plus xy। so ये होगा 1 plus xy is greater than 0। ओके, सो इसमें भी हम वही यूज करते हैं, सेम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम ए ले लेते हैं, सो दिस इज टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। तो अब हम ये देखते हैं ए माइनस बी क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। सो यहां से अगर देखेंगे x टेंजेंट ए बन जाएगा, ये बन जाएगा, y जो बन जाएगा टेंजेंट बी। सो दिस विल बी टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, टेंजेंट ए x है, टेंजेंट बी y है, 1 प्लस एक्स वाई। सो a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो a और b की वैल्यू डाल दो, क्या है a और b की वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, सो ये आपका आ जाएगा। इसके आगे चलते हैं हम। ओके, अभी टेंजेंट पे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो लिखते हैं, इसको पहले रब करते हैं, देन वी कैन मूव सम मोर प्रॉपर्टी ऑन टेंजेंट ऑफ एंगल। ओके बेटा, सो लेट अस erase this part। सो ये सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज है +1 के बेटा उसी के बेस पे ही है। सो ये हमारा डबल रिवीजन हो जाएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, और साथ के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी बन जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं, जैसे हमारे पास है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं डिफरेंट वेरिएंट्स में। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन सभी को हम प्रूव कर सकते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं प्रूफ। ये फर्स्ट वाला, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो फर्स्ट में क्या है, अगर इसमें टेंजेंट डालते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमें मालूम है, दिस इज साइन 2 थीटा। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सो साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे, दिस इज 2 थीटा। सो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। सो दिस इज 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या करना है, उसमें भी लेट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो थीटा यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा, तो क्या बन जाएगा,
कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। जस्ट रिप्लेस दिस बाय cos 2 थीटा। सो ये आपका आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये कट गया। सो दिस इज 2 थीटा, थीटा की जगह हम टेंजेंट इनवर्स x डाल सकते हैं। सो दिस विल बी योर सेम एज योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो ये भी आपका हो गया सेकंड वाला भी। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में क्या है, दिस इज टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑन द सेम बेसिस हम इसमें क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसमें डाल दो tan थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा। सो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा, ये कट गया। सो 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x। सो ये भी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया। सो वी कैन रिप्लेस 2 टेंजेंट इनवर्स x में डिपेंडिंग अपॉन द आउटर रिलेशन। क्या है, साइन है तो साइन इनवर्स में कर देंगे, कॉस है तो कॉस इनवर्स में कर देंगे, टैन है तो टैन इनवर्स में कर देंगे। सो दिस वी कैन गेट। सो उसके लिए हम लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। तो इसमें अब साइन और कॉस के फॉर्मूलास लिखते हैं। उसमें हम करते हैं, क्या बन जाएगा देखो। सो ये है हमारा, लेट्स रब दिस पार्ट। तो आगे मूव करेंगे फिर। सो आगे हमारे पास है दो फॉर्मूला में लिखता हूं, दोनों को हम करेंगे साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये होगा, और अगर माइनस के लिए होगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसमें हम सेम चीज ही करते हैं। सो पहले हम फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। क्या होगा, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो इसका क्या मतलब होगा, x हो जाएगा हमारा साइन a, और साइन इनवर्स y जो होगा b, इसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन b। तो अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन किया था हमने साइन a प्लस b का, वो लिखते हैं साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ओके, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन a को तो वैसे ही रहने दो, ये कॉस स्क्वायर करके अंडर रूट भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर b, उसका अंडर रूट कर दो। इसी तरह से कॉस स्क्वायर a, उसका अंडर रूट कर दो, साथ में है साइन b। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन a, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस का साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस साइन b इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये सारा कुछ हमारा साइन में आ गया। सो साइन में हम ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या है ये हमारे पास, साइन a किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सो दिस विल बी इक्वल टू x, ये क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड दिस a प्लस b विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a की जगह हम क्या डालेंगे, a साइन इनवर्स x, ये हमारा साइन इनवर्स x है, b क्या है साइन इनवर्स y है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा,
सो अगर हमने इसको दूसरी तरफ से करना हो मीन्स माइनस वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आ रहा है वहां पे माइनस आ जाएगा। ओके, सो इसको हम प्रूव कर सकते हैं सेकंड में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लस की जगह माइनस डाल दूं तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस, ये माइनस। ओके, सो दोनों हमने एक में ही कर दिए, सो कंफ्यूज मत होना। सो व्हाट वी हैव डिड एज वी आर गिवन इन द फॉर्मूला, सेम वी हैव वर्ब्ड हियर। सो उसी के बेसिस पे हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कॉस पे है, तो क्या है हमारी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसका सेकंड पार्ट, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो ये प्रॉपर्टी को भी हम दो हिस्सों में करेंगे उसी तरह से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सो फर्स्ट वाली को कर लेंगे, सेकंड तो अपने आप खुद से ही हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सो पहले इसमें वही अज्यूम करते हैं, क्या करेंगे, सो फर्स्ट वाला लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। अगर कॉस इनवर्स एक्स ए है तो क्या आएगा हमारे पास, x will be equal to cos a। ओके, तो और cos इनवर्स y को हम b मान लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा, cos b। ओके, सो x और y आ गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, cos a प्लस b का फॉर्म लिखते हैं। cos a प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला, तो बेटा ये +1 का फॉर्मूला है, यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल। तो हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी योर cos a cos b माइनस sin a sin b। सो cos a प्लस b का क्या हो जाएगा, ये cos a वैसे रहेगा, cos b भी वैसे रहेगा, ये sin है उसको स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, इसी तरह से अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर b। तो ये हो जाएगा इक्वल टू cos a cos b माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो अब तो हो गया क्वेश्चन, क्या करेंगे इसको, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a क्या है, cos a हमारे पास है x, तो ये x आ जाएगा, cos b y है माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी विल बी इक्वल टू, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, ये बन गया एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो अब x a और b को हम रिप्लेस कर देंगे, क्या है a और b हमारे पास, a है हमारा cos इनवर्स x और b है cos इनवर्स y। सो दिस विल बी cos इनवर्स x cos इनवर्स y is equal to cos inverse एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इसमें कॉस में हमारा उल्ट होता है, प्लस के लिए माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। सो माइनस के लिए प्लस, अंतर तो वही रहेगा, माइनस के लिए प्लस, तो माइनस के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस के लिए यहाँ पे प्लस रहेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट भी इसी के साथ ही प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, टेक ए नोट ऑफ इट, इसको देखो समझो, देन वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट अस इरेज दिस पार्ट। Then we will start with some of the questions. So just take a look of it. So okay बेटा, इसको रेज करके let's do the next part. So now we move on to the questions.
कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन है, देखो, प्रूव दैट कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, प्रूव दैट cos of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 is equal to 6/5√13। ओके, सो हमने क्या करना है, ये वाली चीज हमारे पास बाहर कोस है तो अंदर भी कॉस में ही कन्वर्ट करना है। पहले तो ये देखें, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, साइन इनवर्स को हमने कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो ये हमें पता है, साइन इनवर्स एक्स को हम ये लिखते हैं, ये हमारा अगर एंगल हो जाएगा कोई भी, साइन क्या है 3 है, ये 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, थर्ड साइड 4 आ जाएगी। तो इसमें हम क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज कॉस इनवर्स 4/5। अब कॉट इनवर्स हमारा 3/2 है। अब एक और ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कॉट को हम 3/2 लिखेंगे, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, सो 9 और 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा √13, ये साइड आ जाएगी √13। तो इसमें अब कॉस लिखेंगे, कॉस क्या आएगा इसमें, कॉस इनवर्स 3/√13। ओके, अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, अभी हमने किया था, 1 मिनट में इसकी जरूरत पड़ गई बेटा। देखो क्या आएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, व्हाट इज कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। यस, रिद्मा, सानवी, जीनिया, इन्होंने सही जवाब दिया है, दैट इज कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, सो दिस विल बी cos of cos inverse xy 4/5 3/√13 माइनस क्या आ जाएगा, √1 माइनस 4/5 स्क्वायर, दैट इज 16/25, √1 माइनस 9/13। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा। सो लेट अस देखते हैं इसका क्या बनता है। So this will be your cos of, ये तो कट ही जाएगा, इसको हम लिखते हैं, ये तो कट जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12/5√13 माइनस ये क्या बन जाएगा, 25 में से 16 गए 9, सो 9 का रूट क्या होता है, 3/5 into ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 4, 4 का रूट कितना हो गया, 2/√13, सो ये कितना हो गया, 12/5√13 माइनस 6/5√13, सो ये क्या हो जाएगा, 6/5√13। तो यही हमने शो करना था, 6/5√13। सो ये अपना ठीक हो गया, इसको थोड़ा ठीक करते हैं बेटा, दिस इज 5√13। ओके, सो ये अपना आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या है, क्वेश्चन सेकंड इज, सेकंड क्वेश्चन में है, इफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y is equal to π/4 and xy is less than 1, then write value of x plus y plus xy, इसकी क्या वैल्यू होगी। ओके, 1 माइनस 1 0 2, सो ये पता करना है हमने, तो इसमें क्या वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है उसी के साथ चलते हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, दिस विल बी
tangent inverse x, tangent inverse y is equal to pi by 4. So this is given to us. Now this will be is equal to tangent inverse x plus y 1 minus xy is equal to pi by 4. तो ये टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इनवर्स है उधर जाके टेंजेंट बन जाएगा. So this is x plus y upon 1 minus xy is equal to tangent pi by 4. ये 1 के इक्वल होता है. So 1 is equal to x plus y upon 1 minus xy. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 minus xy is equal to x plus y. इसको इधर ले जाओ. x plus y plus xy. This is equal to 1. So this will be your value of x plus y plus xy. So first वाला आंसर आ जाएगा. This will be your answer. Okay. So then we will move to the next part. So first we will erase this part. Then we will move to the next part. Okay. सो ये वैल्यू निकालनी है हमने. फाइंड क्वेश्चन इज टेंजेंट इनवर्स टू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/5. सो इसकी वैल्यू हमने पता करनी. तो बाहर टेंजेंट है, अंदर भी हमने टेंजेंट में ही आंसर लेके आना है. सो इसके 3 वेरिएंट्स थे. हम साइन इनवर्स में भी कर सकते थे, टेंजेंट इनवर्स में भी और कॉस इनवर्स में. सो इसमें टेंजेंट इनवर्स का क्या फॉर्मूला था? वी नो दैट इसका फॉर्मूला जो था 2 टेंजेंट इनवर्स x क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इस पे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे. क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 2x 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 स्क्वायर. सो दिस विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा. 2/5 आ गया, नीचे 1 माइनस 1/25. सो दिस इज 2/5 अपॉन 24/25 विच इज 2/5 इंटू 25/24. सो ये 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 5/12. ये हो जाएगा अपना. ठीक है. देन नेक्स्ट इज cos of secant inverse x plus cosecant inverse x. Cos of secant inverse x plus cosecant inverse x, इसकी वैल्यू पता करनी है. सो दिस इज इक्वल टू, और साथ में क्या दिया है? मॉडुलस वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. क्योंकि ये तभी फिजिबल है जब हमारा इसमें ये पॉसिबिलिटी होगी x ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है. तो अब इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास एक थ्योरम थी. सॉल्यूशन में क्या है? सीकेंट इनवर्स x और कोसेकेंट इनवर्स x ये π/2 के इक्वल होता है. ठीक है. व्हेन मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो यही हमें दिया है. सो इसकी जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0. सो आंसर इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है? कॉट ऑफ टेंजेंट इनवर्स a प्लस कॉट ऑफ इनवर्स a. सो ये भी π/2 के इक्वल है. कॉट π/2, दिस इज cos π/2 अपॉन sin π/2. सो दिस इज 0 अपॉन 1. दिस इज अगेन 0. ओके. Then next is sine of π/3 minus sine inverse minus 1/2. So this will be your sine of π/3 minus minus plus हो जाएगा.
sine 1 by 2. So this is equal to sine pi by 3 plus pi by 6. ये क्या हो जाएगा sin pi by 2, so which is equal to 1. इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. Okay. Then moving on to the next part, just erase this part, then we will move to the next part. Okay, then we do the next question. इसमें क्या है, 2 sin inverse 3 by 5 is equal to, prove that 2 sin inverse 3 by 5 is equal to tangent inverse 24 by 7. ओके. सो अब इसमें हमने करना है काम 2 sin a. अगर हम इसमें क्या करते हैं, 2 sin इनवर्स x को हम ये लिख सकते हैं, हमें पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x. तो sin 2x क्या हो जाएगा, 2 sin x, ये cos स्क्वायर x को अंडर कर सकते हैं, अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर x भी बोल सकते हैं. अगर sin x हमारा क्या है, अगर हम sin x को थीटा ले लेते हैं, sin x इज इक्वल टू थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये x किसके इक्वल हो जाएगा, sin इनवर्स थीटा. सो दिस विल बी sin 2x विल बी इक्वल टू 2 थीटा अंडर 1 माइनस थीटा स्क्वायर. सो 2x विल बी इक्वल टू sin इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर. और 2x क्या है, x को हम लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स 2x, x इज इक्वल टू sin इनवर्स थीटा. ठीक है, 2 sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 थीटा अंडर 1 माइनस थीटा स्क्वायर. सो वही यहाँ पे भी वही यूज करते हैं. सो 2 sin इनवर्स 3 by 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा, this will be your so this will be 2 को तो वैसे रखेंगे sin इनवर्स x 2x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर. तो x यहाँ पे 3 by 5 है, sin इनवर्स 2 इंटू 3 by 5 अंडर 1 माइनस 9 by 25. सो ये हो जाएगा sin इनवर्स 6 by 5 इंटू 4 by 5. सो दिस इज sin इनवर्स 24 by 5. ये क्या आ गया, 2 इंटू, ओके. सो लेट अस सी दिस. इसमें क्या होगा 24 by 5. तो इसकी पॉसिबिलिटी तो कम लग रही है, 24 by 25 आएगा बेटा, बिकॉज दिस इज ऑलवेज लेस देन 1. ओके. अब इसमें हम ट्रायंगल में बनाते हैं साइन थीटा को 24 by 25. ये 24 हो गया, ये 25 हो गया. थर्ड साइड निकालते हैं, क्या बन जाएगा, दिस इज 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, अंडर कर दो, क्या बन जाएगा 24 और 25 49 इंटू 1, ये 7 आ जाएगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट यूज किया, सो दिस विल बी 7. तो यहाँ पे tan क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 24 by 7. ओके. सो दिस इज डन, दिस इज देयर. ओके बेटा. देन ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमने करना है क्या, इसमें पहले इसको इरेज कर लें, देन वी मूव टू दिस क्वेश्चन.
सो ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या है, थोड़ा टिपिकल है। तो ये अपना हो जाएगा टेंजेंट, वी हैव टू प्रूव दिस, इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव दैट टेंजेंट हाफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3। ओके, सो इसको थोड़ा पहले सेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट इधर जाके टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। सो दिस विल बी 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 माइनस √7/3, और वी कैन से साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स 4 माइनस √7/3। तो इसको भी हम साइन में चेंज कर लेंगे। साइन में कैसे चेंज होगा, वी नो दैट 2 टेंजेंट इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। तो दिस विल बी साइन इनवर्स, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स x क्या है हमारे पास, 3/4 माइनस √7/3। so this will be 2 into 4 minus √7/3 upon 1 plus 4 minus √7/3 का होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी योर साइन इनवर्स, दिस विल बी योर 8 minus 2 √7 upon 3 upon 1 plus 16 plus 7 minus 8 √7 upon 9. Okay, so this will be equal to sin inverse. so इससे कट जाएगा 3 आ जाएगा ऊपर, 8 minus 2 √7 upon ये हो जाएगा आपका 9 माइनस। सो टेंजेंट इनवर्स में ये हमारा आएगा 2 टेंजेंट इनवर्स, ये साइन इनवर्स का है, साइन इनवर्स 3/4। तो ये माइनस होगा, सो 9 माइनस 23 माइनस 8 √7 अपॉन 9। ओके, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हो गया। दिस विल बी साइन इनवर्स 24 माइनस 6 √7 अपॉन, सो दिस विल बी योर, सो इसको हमने टेंजेंट इनवर्स में चेंज किया है ये। सो दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स। और वैसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, साइन में ही करते हैं, चलो ठीक है। सो दिस इज साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस, सो साइन इनवर्स प्लस, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 8√7। ओके, तो यहाँ से हम 8 बार निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये √7 ये बन जाएगा यहाँ से हमारा। सो दिस इज योर 2 बार निकालेंगे, ये हो जाएगा 12, 4 निकाल लें, 2 से 12 माइनस 3√7 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 16 से 4√7। सो 2 से 2 कट गया। सो दिस इज योर साइन इनवर्स। सो इसमें अगर हम 3 निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 4 माइनस √7, और नीचे हम 4 निकालते हैं, सो दिस विल बी योर 4 माइनस √7। सो ये बन जाएगा हमारा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। सो यही हमने निकालना था बेटा। दिस इज ओके, दिस इज सेम एज साइन इनवर्स 3/4। सो ओके बेटा, ये आज हमने प्रॉपर्टीज की है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।